اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم چیپٹر نمبر 8 سوکس کلاس 7 پڑھنے جا رہے ہیں اور ٹاپک ہے شرٹ ان دا مارکیٹ. اے شرٹ ان دا مارکیٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس چیپٹر میں ہم جو سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں، اب ایک شرٹ کی سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں، ایک کہانی پڑھنے جا رہے ہیں. یہ بگن ہوتی ہے اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے پروڈکشن آف کاٹن سے اینڈ اینڈس ختم ہو جاتی ہے اور لاسٹ پہ ختم جب ہوتی ہے یہ سٹوری تو سیل آف شرٹ پہ ختم ہو جاتی ہے. ہم دیکھیں گے اس میں جو یہ چین بن جاتی ہے مارکیٹ میں، لنکس ٹو پروڈیوسر ٹو دا کاٹن آف دا بائر. شرٹ ان دا سپر مارکیٹ بائنگ اینڈ سیلنگ ٹیکس پلیس ایوری سیٹ اپ. ہر ایک سٹیپ پہ جو یہ چین بن جاتی ہے، ہم دیکھیں گے اس چین میں کس کا فائدہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ فائدہ کیا سبوں کو برابر بینیفٹ بن جاتا ہے یا کسی کو زیادہ بن جاتا ہے، کسی کا کم بن جاتا ہے. اب ہم اگزامپل یہاں پہ شروع کریں گے سبق. اے کاٹن فارمر ان کرنول. میرے بچوں، سپنا ایک بندہ ہوتا ہے، ایک اسمال فارمر ہوتا ہے جو آندھرا پردیش میں رہتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گرو کرتا ہے، کاٹن کماتا ہے. اسمال پرائس آف لینڈ، ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے پہ. The boughs of a cotton plant are ripe and some have already burst. So Sapna is busy picking cotton. تو پیارے بچوں، جو یہ آندھرا پردیش کا یہ سپنا ایک بندہ ہے جو کاٹن کما رہا ہے، وہ ایک اپنی کھیت پہ کچھ کاٹن تیار ہوا ہے تو وہ بزی تھا، وہ مشغول تھا یہ کاٹن کو پک کرنے میں. The boughs which carry the cotton in them، ان باؤل میں وہ کاٹن کیری کر رہا تھا. Do not burst open all at once, so it takes several days. اس کو بہت سارے دن لگتے ہیں اس میں تو harvest the cotton، کاٹن کمانے میں. Once the cotton collected، جب کاٹن کلیکٹ ہو جاتا ہے، instead of selling it at the Kurnool cotton market، Sapna and her husband takes the harvest of the local trader. جب یہ سپنا اور اس کا ہسبینڈ خاون جب یہ تیار کرتا ہے تو وہ جاتے ہیں ایک لوکل ٹریڈر کے پاس جاتے ہیں اس کو بیچنے کے لیے. At the beginning of the cropping season، Sapna had borrowed ₹2,500 from the trader at a very high interest rate to buy seeds. اس دفعہ جب اس نے کاٹن کمانا شروع کیا تو سپنا نے اس ٹریڈر سے کچھ پیسے لیے تھے، 2500 لیے تھے، لیکن ویری ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ لیا تھا. اور اس سے اس نے سیڈس خریدے، فرٹیلائزرس خریدے اور پیسٹسائڈ خریدے فار کلٹیویشن آف کاٹن. کاٹن کمانے کے لیے اس نے یہ چیزیں خریدی تھی. Another condition، دوسری کنڈیشن تھی، he made her promise to sell all her cotton to him. اور دوسری اس نے وعدہ کیا تھا، پرومس کیا تھا اس ٹریڈر کے ساتھ، جو بھی کاٹن مجھے کھیت سے نکلے گا میں آپ کو سب آپ ہی کے حوالے کر دوں گا، آپ ہی کو بھیج دوں گا. Cultivation of cotton requires high level of inputs such as fertilizer. کاٹن کمانے کے لیے ہمیں ہائی لیول آف انپوٹس کی ضرورت ہوتی ہے، فرٹیلائزرس اور پیسٹیسائڈس کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ اے فارمرز ہیو ٹو انکیور ہیوی ایکسپینسو آن اکاؤنٹ آف دیز. جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، وہ مجبور ہوتے ہیں. مسٹ اوپن دا اسمال فارمرز نیڈ ٹو بورو منی. ایک چھوٹا سا زمیندار کو بہت سارے
पैसों की ज़रूरत पड़ती है टू मीट दीज एक्सपेंसिव, इन एक्सपेंसिव को पूरा करने। एट अ ट्रेडर यार्ड, टू ऑफ हिज मैन वेट बैग्स ऑफ कॉटन, उसने वेव 2 बड़े बैग कॉटन के लिए एट ए प्राइस ऑफ ₹1500 पर क्विंटल। वहाँ पे जो रेट फिक्स हुई, एक क्विंटल की रेट हो गई है ₹1500। द कॉटन प्राइस द ट्रेडर डिटेक्टर्स ₹300 फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन। और जब उसने दो बेग जब उसने भेज दिए तो क्या हुआ, तो उसके 6,000 बन गए हैं। लेकिन ट्रेडर ने क्या किया, उसने डिडक्ट किया है, जो उसने एडवांस में पेमेंट दी थी उसके 3,000 उसने डिडक्ट किए हैं फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट एंड पेज सपना ₹3,000, और उसने सपना को 3,000 रुपये दिए। द ट्रेडर कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। ट्रेडर ने क्या कहा, ट्रेडर बोल रहा था कि कॉटन की रेट कॉटन आज बहुत सस्ता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सा कॉटन पड़ा हुआ है। सपना, आई हैव टॉयल्ड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रेव दिस कॉटन। सपना बोल रही है कि मैंने बहुत मेहनत की है 4 महीने में इस कॉटन कमाने के लिए। यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम। आप देख सकते हो कितना अच्छा और कितना साफ दिखाई दे रहा है ये कॉटन। आई होप टू गेट मच बेटर प्राइस। मैं इससे ज़्यादा कीमत हासिल करनी चाहती हूँ, मुझे इससे ज़्यादा कीमत आना चाहिए। ट्रेडर ने क्या कहा, ट्रेडर ने बोला, अम्मा आई एम गिविंग यू ए गुड प्राइस। अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ। अदर्स ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच। अगर आप किसी दूसरे के पास जाएंगे वो इतना नहीं देगा। यू कैन चेक एट ए कर्नूल मार्केट। आप अपने कर्नूल मार्केट में चेक कीजिए। इफ यू डू नॉट बिलीव मी, अगर आप मुझ पर यकीन करते हो तो आप इस मार्केट में जाइए और वहाँ पे रेट मालूम कीजिए। सपना, डोंट बी एंग्री। गुस्सा, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? डोंट बी एंग्री, हाउ कैन आई डाउट यू, मैं आप पे कैसे शक करती हूँ। आई हैड ओनली होप्ड, मुझे आप यकीन है, दैट वी वुड अर्न एनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप एट लीस्ट एज फॉर फ्यू मंथ्स। मुझे उम्मीद थी कि मैं बहुत कुछ कमाऊँगी इन 4 महीने में इस कॉटन से, ताकि मैं कुछ महीना गुजारा कर सकती हूँ। Though Sapna knows that cotton will sell for at least 1,800 per quintal, she doesn't argue further. दो सपना को पता था कि वो इसको 1,800 में बेच देगी एक क्विंटल, बट नहीं किया। द ट्रेडर इज ए पावरफुल मैन, क्योंकि ट्रेडर एक पावरफुल मैन है इन द विलेज, गाँव में, एंड फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करते हैं, इंतज़ार रखते हैं। फॉर हिम लोन, नॉट ओनली फॉर द कल्टिवेशन बट आल्सो टू मीट अदर एक्सपेंसिव। दूसरी कामों के लिए भी उसको इस ट्रेडर से लोन लेना पड़ता था। अगर कभी कभार बीमार हो, कोई बच्चा बीमार हो, कभी स्कूल बच्चों का फीस भरना हो, तो उसके लिए भी वो ट्रेडर से पैसा मांग रही थी। आल्सो देयर आर टाइम्स इन ईयर व्हेन देयर इज नो वर्क। कभी कभार ऐसा भी होता है साल में कि काम नहीं होता है, तो फॉर द फार्मर, जिम्मेदार के लिए, सो बोरोइंग मनी इन द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइव, उनके लिए यही पैसा होता है। वो बारो मनी लाते हैं, एडवांस में पैसा लेते हैं और उससे अपना गुजर बसर करते हैं। सपना, अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टिवेशन इज barely more than what she might have earned as a wage of labor। सपना ने बहुत कुछ कमाया, उससे ज़्यादा जो मजदूरी करके कमाए उसके अलावा उसने कमाया। अब द क्लोथ मार्केट ऑफ एरोड, अब देखेंगे हम ट्रेडर क्या करेगा। एरोड
एरोडी बाई वीकली क्लोथ मार्केट। एरोडी एक मार्केट का नाम है जो वीकली हफ्ते में एक दिन लग रहा है इन तमिलनाडु में। इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट, जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट है दुनिया में। ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ्स इज सोल्ड इन दिस मार्केट। वहाँ पे बहुत सारी किस्म के कपड़े बेचे जाते हैं। Clothes that is made up of weaver in the village around is also brought here for sale. वो कपड़े जो गाँव में लोग तैयार करते हैं, वेवर बनाता है, हाँ वेवर बनाता है, वो भी इस मार्केट में सेल के लिए आते हैं। अराउंड मार्केट और ऑफिस एंड क्लोथ्स मर्चेंट्स। मार्केट के इर्द गिर्द हमें ऑफिस पाए जाते हैं, दफ्तर पाए जाते हैं। क्लोथ मर्चेंट के बाय दिस क्लोथ्स, जो इस क्लोथ को खरीदते हैं वहाँ पे। अदर ट्रेडर्स फॉर मैनी साउथ इंडियन टाउन्स आल्सो कम। साउथ इंडियन से भी बहुत सारे खरीदार ट्रेडर्स आते हैं वहाँ पे परचेजिंग, कपड़ों को परचेज करने के लिए इस मार्केट में। On market day, you would find weavers bracing clothes. They have been made in order from the merchants. These merchants supplying clothes to others. जिस दिन ये मार्केट लग जाता है, आप देखेंगे वहाँ पे जो मर्चेंट्स होते हैं, जो ये फार्मर्स होते हैं, वेवर्स होते हैं, ये अपने कपड़ों को बेचते हैं वहाँ पे। और जो वहाँ पे मर्चेंट्स होते हैं, वो अपने कपड़ों को मेड एंड ऑर्डर अब मर्चेंट्स ऑर्डर देते हैं और फिर इसको सप्लाई करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक्सपर्ट्स अराउंड कंट्री, दुनिया के मुख्तलिफ एक्सपर्टों के ज़रिए दे परचेज द यार्न, और कुछ परचेज यार्न करते हैं, एंड गिव द इंस्ट्रक्शन, और उनको वेवर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको किस किस्म का कपड़ा तैयार करना है। द फॉलोइंग वी कैन सी हाउ दिस इज डन। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कैसे तैयार हो जाता है। Putting out system, weavers producing clothes at home. The merchants distribute work among the weavers. Merchants जो होते हैं ये अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं among the weavers में, based on the orders has to receive for clothes, ताकि वो ऑर्डर रिसीव, जब उनको ऑर्डर देते हैं हमें इतने कपड़े चाहिए, the weavers get yarn, weaver yarn देता है from the merchant से एंड सप्लाई करता है, फिर उसको क्लोथ बनाता है। जो वेवर होता है अरेंज स्विमिंग हैज़ टू एडवांटेज। वेवर के पास दिस अरेंजमेंट के लिए टू एडवांटेज होते हैं। द वेवर डिड नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी। जो वेवर होता है वो अपना पैसा खर्च नहीं करता है, स्पेंड नहीं करता है यहाँ पे। आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लोथ्स इज टेक केयर ऑफ वेवर। लेकिन जो तैयार करता है उसकी बेच देना, weaver can know from the outside with the clothes they should make how much it is to be worn, और उसको पता है कि how should much it to be worn, कैसे ये बनता है, कितना लग रहा है इसमें। however this dependence in the merchants both from raw material and market means that merchants have a lot of power। इससे हमें ये पता चले मर्चेंट के पास बहुत सारा पावर होता है। दे गिव ऑर्डर, वो ऑर्डर देते हैं, व्हाट इज मेड ऑफ, एंड दे पे वेरी लो प्राइस फ्रॉम मार्क मेकिंग द क्लोथ, वो इस पर कम कीमत खर्च करते हैं इसको बनाने में। द वेवर है नो वे, वेवर के पास कोई रास्ता नहीं होता है नोइंग हु दे आर मेकिंग द क्लोथ्स फॉर और एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड। वेवर के पास मालूमात ही नहीं होते कि ये कपड़ा कितने में तैयार होगा और कितने में इसको बेच दिया जाएगा। एट क्लोथ मार्केट मर्चेंट्स सेल द क्लोथ्स द गारमेंट्स फैक्ट्रीज। इन दिस वे द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट। जब ये कपड़े मार्केट में बेच दिए जाते हैं इनको गारमेंट वाले, फैक्ट्री वाले, तो इससे पता चलता है कि मार्केट वर्क मोर इन फेवर ऑफ, इससे ये पता अंदाज़ा होता है, ये पता चलता है कि मार्केट ज़्यादा फेवर किसको करता है, मर्चेंट को। वेवर इन्वेस्ट ऑल द सेविंग्स एंड बोरोज मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय लोन। वेवर को क्या होता है, वेवर को दे आर सेविंग और बोरोइंग मनी के लिए उसको बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ता है
تو تاکہ وہ لون بائی کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. ایچ لون کاسٹ تقریباً ایک لون 20,000 روپے کا ہوتا ہے. سو اے اسمال ویور دیٹ 2 لونز ہیز انویسٹر. اگر ایک اسمال ویور ہوتا ہے، اس کو 2 لون بنانے ہوگی تو اس کے لیے اس کو 40,000 انویسٹ کرنے پڑیں گے. These loans cannot be done alone. اور اسی سے یہ کام نہیں ہوگا. The waivers and other adult members of the family work up to. جو ویور ہوتا ہے اس کے باقی گھر کے ممبر ہوتے ہیں وہ تقریباً دن میں 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. To produce a loan for this work they earn about. اس پہ کے لیے وہ کتنا کماتے ہیں؟ 3500 روپیہ پر منتھ میں وہ کما لیتے ہیں. The arrangement between the merchants and the waivers is example of putting out system. یہ ایگزامپل ہے پٹنگ آؤٹ سسٹم کی، جہاں پہ مرچنٹس سپلائی کرتے ہیں را مٹیریل اینڈ ریسیو کرتے ہیں فنشل پروڈکٹ. ان دا پریونٹ ان دا ویور انڈسٹری از موسٹ ریجنس آف دا انڈیا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ویونگ انڈسٹری زیادہ پائی جاتے ہیں ہندوستان.